Pranam everyone. How are you all? Hope you enjoyed the Diwali vacations, right? Okay. As you know that semester 1 is over. Now we have to start the second semester. We have to move towards our second semester. But before starting the semester, we all will recite the shloka. So everyone please get ready for the shloka. Join your hands, close your eyes. Now we will start. त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव. Hello everyone. Okay. Now hope all of you are ready with your textbook and pencil. Pencil you need because whenever you feel a difficult word or a new word, you need to mark that and find out the meaning of that word by yourself. And if you don't get the meaning, you can call me, you can ask me. Okay? Now, uh, as you know, in this semester we have total 9 chapters. So today we will start with our first chapter, that is transport. Transport. You have been already studied about the transport from your first or second standard, I think. So you all are very well aware about the transport. So what is transport? What is the simple meaning of transport? अगर हम कहें कि transport, तो transport का simple meaning क्या होता है? Simply, transport means shifting of people or goods from one place to another is called transport. मतलब लोगों को या किसी सामान को एक जगह से दूसरे जगह पर पहुंचाना, that is called transport. Now, in this chapter, we will discuss mainly 3 topics, that is transport, means of transport, that is types of transport या उसके कौन से means होते हैं that, and the lastly the disadvantages of modern means of transport. As we know, in the earlier age we don't have any means of transport. Transport का कोई mean था ही नहीं. Whenever people need to go any place, they need to walk. उन्हें चलकर जाना होता था क्योंकि ट्रांसपोर्ट का कोई मीन्स था ही नहीं. Slowly and slowly the means of transport were developed. Now we are having a lot of means of transport. तो ये जो lot of means of transport है ना, उसकी वजह से आज हमें हमारी जनरेशन को, लोगों को, ह्यूमन बींग्स को कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, उसके जो डिसएडवांटेजेस हैं, दैट वी विल स्टडी. But before starting that, we need to concentrate on our chapter, that is transport. चलिए, first of all, very fast we will gear up. See, here you have given some jumble words. आपको यहाँ पर कुछ jumble words दिए हैं, आपको उन्हें unscramble करना है और उससे एक word form करना है. That word will be any mean of transport. वो किसी भी transport का कोई mean हो सकता है. See, you have given one example. You have given BYICECL, and from that it becomes bicycle. So now you have given rest 5 that you have to do by yourself. वो आपको अपने आप करना है. When we will having the live class, at that time we will discuss. Okay? I hope you all will complete it very fast, huh? चलिए. Now let's start the chapter. Transport. Transport is not only needed for traveling to places but also for moving goods from one place to another. As I earlier told you, transport सिर्फ ट्रैवलिंग मीन्स ह्यूमन बींग्स के ट्रैवल करने के लिए, एक जगह से दूसरी जगह तक जाने के लिए यूज नहीं होता, बट इट इज ऑल्सो यूज्ड फॉर द शिफ्टिंग ऑफ गुड्स. जो भी हमारा सामान है उसे भी एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए ट्रांसपोर्ट यूज होता है. सी फॉर एग्जाम्पल, इफ यू हैव टू शिफ्ट फ्रॉम वन सिटी टू अनदर, अगर आपको एक शहर से दूसरे शहर में शिफ्ट होना है, फॉर एग्जाम्पल राइट नाउ यू आर लिविंग इन मोरबी एंड यू आर गोइंग टू शिफ्ट टू राजकोट, तो आप कार से जा सकते हैं, बस से जा सकते हैं, ट्रेन से जा सकते हैं,
You can use many means of transport, but how you will carry your all goods? आपका घर का सारा फर्नीचर, सारा सामान, वो सब कैसे मूव करेंगे? वो आप हाथ में लेकर तो नहीं जा सकते हैं ना. सो फॉर दैट यू नीड द मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट. सो दैट इज, तो ट्रांसपोर्ट का मीनिंग सिर्फ और सिर्फ ट्रैवलिंग नहीं होता, ह्यूमन बींग्स का शिफ्टिंग नहीं होता, उसमें गुड्स का भी आता है. जो भी हमारा सामान है, फर्नीचर है, रॉ मटेरियल है या मशीनरी है, एवरीथिंग, उस सब की शिफ्टिंग को भी, उस सब को भी एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर मूव करना इज कॉल्ड ट्रांसपोर्ट. सी, raw materials needed to be transported to factories and the finished goods have to be reached to market. raw material मतलब वो चीज जिससे कोई भी फाइनल प्रोडक्ट बनाया जाता है. फॉर एग्जाम्पल, इफ वी नीड द क्लोथ्स हमारे फाइनल गुड्स हैं, बट क्लोथ्स को बनाने के लिए हमें कॉटन चाहिए, जूट चाहिए, दैट इज द रॉ मटेरियल, वो उसका रॉ मटेरियल है. तो सबसे पहले किसान, फार्मर के पास से वो कॉटन, वो जूट फैक्ट्रीज में पहुंचेगा, तभी तो वो कॉटन और जूट से फैब्रिक में कन्वर्ट होके वो आपके पास क्लोथ्स के रूप में आएगा. तो सबसे पहले रॉ मटेरियल को फैक्ट्रीज तक पहुंचाना पड़ता है, जहां पर वो फिनिश गुड्स में कन्वर्ट होते हैं, फाइनल प्रोडक्ट्स में. फिर वो फाइनल प्रोडक्ट्स को मार्केट्स तक पहुंचाना पड़ता है, बिकॉज यू हैव टू परचेज दैट फ्रॉम मार्केट. अब हम डायरेक्ट फैक्ट्रीज में तो नहीं जाते ना. फॉर एग्जाम्पल, हमें कोई ड्रेस परचेज करना है, तो क्या हम डायरेक्ट फैक्ट्री में जाएंगे कि भैया हमें ये ड्रेस परचेज करना है? नहीं ना, वी हैव टू गो टू द मार्केट. तो फार्मर्स से रॉ मटेरियल को फैक्ट्रीज तक पहुंचाना, एंड उस रॉ मटेरियल से जब फिनिश्ड प्रोडक्ट, जो हमारे क्लोथ्स, फैब्रिक रेडी हो जाता है, तो उस फैब्रिक को मार्केट तक पहुंचाना. For all these things we need the transport. See, I'm not saying कि सिर्फ क्लोथ्स के लिए, क्लोथ्स का तो मैंने सिर्फ आपको एक एग्जांपल दिया है, but for everything it is the same process. Okay? Thus, industrialization depends on an efficient transport system. So, जितना भी हमारा इंडस्ट्रियलाइजेशन है, जितनी भी हमारी इंडस्ट्रीज हैं, बिकॉज कि हर इंडस्ट्रीज के लिए कुछ ना कुछ रॉ मटेरियल होता है. अगर आयरन इंडस्ट्रीज है, मशीनरीज है, तो उसके लिए आयरन चाहिए रॉ मटेरियल, और उसकी जो हैवी मशीन्स हैं, उन्हें ट्रांसफर करने के लिए, उन्हें शिफ्ट करने के लिए भी ट्रांसपोर्टेशन चाहिए. तो हमारा जो इंडस्ट्रियलाइजेशन है, मॉडर्नाइजेशन है, वो सारा किस पे डिपेंड करता है? एफिशिएंट मींस ऑफ ट्रांसपोर्ट, एफिशिएंट ट्रांसपोर्ट सिस्टम. कि हमारा जो ट्रांसपोर्ट है वो अगर बेटर होगा तो इंडस्ट्रियलाइजेशन भी ज्यादा होगा. नाउ there have been two major developments in the field of transport. See, from the starting, I told you ना कि starting में कोई भी transport के means नहीं थे. So at that time, if people want to go any other place, they need to walk. उन्हें चल के जाना पड़ता था. Even if they want to carry their things, उन्हें अपना सामान भी अपने साथ कैरी करके ले जाना पड़ता था. They don't have any means of transport. So दो ऐसे मेजर इन्वेंशंस हैं, डेवलपमेंट्स हैं, जो तब से लेके अब तक हुए हैं, जिन्होंने ट्रांसपोर्ट को इतना ज़्यादा डेवलप्ड, इतना ज़्यादा एफिशिएंट बना दिया है. दैट इज, फर्स्ट ऑफ ऑल इज व्हील. पहला है व्हील, यानी पहिया. एज यू नो, ऑल द मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट वर्क ऑन व्हील. अगर व्हील नहीं है तो कोई भी ट्रांसपोर्ट का मीन वर्क नहीं करेगा. And second is the steam engine, that is invented by the James Watt, who has steam engine. First of all, we will discuss about the wheel. The first was the invention of wheel. जो पहला है वो wheel का invention है. In ancient time, carts with wheels were an important mode of transport. एंशियंट यानी पुराने टाइम में जो कार्ट्स होती हैं, जिसे यू हैव गिवन वन पिक्चर ऑफ बुलॉक कार्ट, आपको एक कार्ट की पिक्चर दी है. सो ऐसे कार्ट्स विद व्हील्स, ये ट्रांसपोर्ट के इंपॉर्टेंट वेज होते थे, क्योंकि उसके पहले तो ट्रांसपोर्ट होता ही नहीं था, लोगों को चल के जाना पड़ता था. जब व्हील का इन्वेंशन हुआ, व्हील का इंट्रोडक्शन हुआ, उसके बाद लोगों ने सबसे पहले कार्ट्स बनाए. पहले जो सबसे पुराने कार्ट्स होते थे,
people used to pull them by themselves. लोग उन्हें खुद खींचते थे. फिर धीरे धीरे हॉर्सेस से स्टार्ट किया, फिर बुलॉक से स्टार्ट किया, फिर ऑक्स से स्टार्ट किया. सो ऐसे ऐसे धीरे धीरे दूसरे कार्ट्स भी बने. They continued to be in use for the time till the steam engine was invented by James Watt. Yes, the second most important invention was the steam engine, जो कि जेम्स वॉट ने बनाया था. सी यू हैव गिवन वन पिक्चर ऑन योर लेफ्ट हैंड साइड. आपको स्टीम इंजन का एक पिक्चर भी दिया है. दैट इज द सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट इन्वेंशन इन द फील्ड ऑफ ट्रांसपोर्ट. वो ट्रांसपोर्ट के फील्ड में दूसरा सबसे इम्पॉर्टेंट इन्वेंशन था, क्योंकि इस इन्वेंशन के बाद जो ट्रैवलिंग थी वो बहुत फास्ट हो गई थी. सी, पहले क्या होता था, कार्ट्स होते थे व्हील से, तो कार्ट्स बहुत स्लो मूव करते हैं, तो दे टेक मच टाइम टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. बट जब स्टीम इंजन का इन्वेंशन हुआ तो जो इंजन है वो बहुत फास्ट चलते थे कार्ट से, तो उसने ट्रांसपोर्टेशन की स्पीड को इंक्रीज किया. ओके, दिस वाज द सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट इन्वेंशन इन द हिस्ट्री ऑफ ट्रांसपोर्ट. In the engine designed by Watt, coal was used as the fuel to produce the steam. जो जेम्स वॉट ने जो इंजन बनाया था, स्टीम इंजन, स्टीम एज यू नो, स्टीम का मतलब क्या होता है, भाप. तो वो गर्म होने से, भाप बनने से चलता था. सो इसमें फ्यूल, ईंधन की तरह किसको यूज किया जाता था, कोयला. कोयले को स्टीम की फ्यूल की तरह यूज किया जाता था इन द फर्स्ट इंजन मेड बाय जेम्स वॉट. उसके बाद धीरे धीरे उसमें बहुत सारे चेंजेस हुए. उसके बाद डीजल से चलने लगे, इलेक्ट्रिसिटी से चलने लगे, सो बहुत सारे चेंजेस आए. ओके, लेटर engines that run on diesel or electricity were introduced. सबसे पहले स्टीम इंजन आया, उसके बाद डीजल और इलेक्ट्रिसिटी के. आज हमारे पास ऐसे इंजन्स हैं जो इलेक्ट्रिसिटी से मूव करते हैं. With this, transport underwent a complete revolution. ये जो था वो ट्रांसपोर्टेशन में एक बहुत बड़ा रिवॉल्यूशन माना जाता है, बिकॉज कि उसके पहले तो हमारे पास ट्रांसपोर्ट के मीन्स ही नहीं थे. सबसे पहले व्हील का इन्वेंशन हुआ. इन्वेंशन ऑफ व्हील was the most important invention in the field of transport. ट्रांसपोर्ट में सबसे बड़ा इन्वेंशन था, बिकॉज कि व्हील एक ऐसी चीज है जिसके बिना हम कोई भी व्हीकल को मूव नहीं कर सकते. इफ यू विल सी एनी व्हीकल, आप बाइसिकल ले लीजिए, कार ले लीजिए, बस, जीप, ट्रेन, इवन एरोप्लेन, तो वो भी उनको भी मूव करने के लिए व्हील की ज़रूरत है. So they need the wheel. So wheel was considered as the most important invention in the field of transport. The second important invention was the invention of steam engine. स्टीम इंजन का था. सबसे पहले स्टीम इंजन बना जिसमें कॉयल को यूज किया जाता था एज फ्यूल. फिर धीरे धीरे डीजल को एज फ्यूल लेकर इंजन बनने लगे. फिर ऐसे इंजन इन्वेंट हुए, डेवलप हुए, जिन्हें इलेक्ट्रिसिटी से चलाया जाता था. आज बहुत सारी ऐसी कार्स हैं या ट्रेन्स हैं जो इलेक्ट्रिसिटी पर रन करती हैं. सो दैट यूज द इंजन रन ऑन इलेक्ट्रिसिटी. ओके, नाउ टुडे वी लिव इन द एज ऑफ फास्ट ट्रांसपोर्ट. आज हमारी कौन सी एज है? दैट इज द एज ऑफ फास्ट ट्रांसपोर्ट. आज हमारे पास ट्रांसपोर्टेशन के फास्टेस्ट से भी फास्टेस्ट मीन्स हैं. इट इज पॉसिबल टू रीच एनी प्लेस ऑफ द वर्ल्ड मच फास्टर देन बिफोर. आज हमारे पास एरोप्लेन्स हैं, हेलीकॉप्टर्स हैं, उनके ज़रिए हम वर्ल्ड के किसी भी प्लेस में बहुत आसानी से और बहुत जल्दी पहुंच सकते हैं देन द अर्लियर, पुराने ज़माने में. बिकॉज एंशियंट टाइम में तो कोई ट्रांसपोर्ट का मीन्स ही नहीं था, तो लोगों को चलकर जाना पड़ता था. दैट वॉज वेरी डिफिकल्ट. सो इन्वेंशंस such as aeroplanes and bullet trains. As you know, bullet trains run very, very, very fast. So aeroplanes and bullet trains have made the world a smaller place.
तो जो एरोप्लेन्स है या बुलेट ट्रेन्स है जो कि बहुत फास्ट चलती है, तो इन्होंने वर्ल्ड को क्या बना दिया है, एक छोटा सा प्लेस, मतलब हम पूरे वर्ल्ड में बहुत कम समय में और बहुत आसानी से कहीं भी पहुंच सकते हैं. दैट्स वाई इट इज सेड दैट द वर्ल्ड हैव बिकम अ स्मॉलर प्लेस, कि जो पूरा वर्ल्ड है एक छोटी सी जगह बन गई है जिसमें हम आसानी से मूव कर सकते हैं. अब जैसे हमारा घर है, हम हमारे घर में कहीं भी आसानी से मूव कर सकते हैं ना, बट इफ वी आर लिविंग इन वन सोसाइटी, इन वन सिटी, वी कैन यूज द कार. हम कार, बस से आसानी से सिटी के अंदर मूव कर सकते हैं. बिटवीन टू सिटीज वी कैन यूज द ट्रेन ऑल्सो. So all these means of transport, they converted the world in a smaller place. इसने पूरे वर्ल्ड को एक छोटी सी जगह बना दिया है जिसमें हम आसानी से मूव कर सकते हैं. Now let's discuss the means of transport. Now we have discussed about the transport, कि transport क्या है, उसकी important inventions क्या हैं. Now we will discuss the means of transport. See, the means of transport required in a particular country depend on its geographical limitations and on the needs of its industries. So जो means of transport हैं वो हर कंट्री के अलग अलग होते हैं. ऐसा नहीं है कि सब जगह एक जैसे ही means of transport होते हैं, और वो किस पर डिपेंड करते हैं, वहाँ की geographical limitations, मीन्स वहाँ की ज्योग्राफी कैसी है, एरियाज प्लेन हैं या वहाँ पे माउंटेन्स ज़्यादा हैं. माउंटेनियस जैसे प्लेन एरियाज है वहाँ पे कार बस आसानी से मूव कर सकती हैं, बट जो माउंटेनियस एरिया है क्या वहाँ पर कार और बस आसानी से मूव कर सकती हैं? नहीं. सो उसकी ज्योग्राफिकल लिमिटेशन, उसकी ज्योग्राफिकल फीचर्स पर वो डिपेंड करता है. एंड सेकेंडली इट डिपेंड्स ऑन द नीड्स ऑफ इट्स इंडस्ट्रीज, कि वहाँ की जो इंडस्ट्रीज है, फॉर एग्जाम्पल जो आयरन बेस्ड इंडस्ट्रीज है, उनके लिए हैवी वेट व्हीकल चाहिए. ऐसे व्हीकल जिनसे आयरन बिकॉज हैवी होता है, तो हैवी वेट व्हीकल्स चाहिए जो हैवी वेट को आसानी से शिफ्ट कर सके. ओके, नाउ ट्रांसपोर्ट कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरीज. जो हमारा टोटल ट्रांसपोर्ट है हम उसे 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं. Number 1, it's land transport. Number 2, it's water transport. Number 3, it's air transport. ये जो 3 हैं ये हमारे 3 मेन कैटेगरीज हैं, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट हैं, टाइप्स हैं. लैंड ट्रांसपोर्ट, वाटर ट्रांसपोर्ट, एयर ट्रांसपोर्ट. Now first of all we will discuss the land transport. See, the land transport can be further divided into 2 types, 2 ways. उसे हम फर्दर दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं. दैट इज रोडवेज एंड रेलवेज. बिकॉज की जो रेल्स होती हैं, ट्रेन्स होती है, दे कांट रन ऑन रोडवेज. वो रोडवेज पर नहीं चल सकती. उनके लिए स्पेशली रेलवे लाइन का होना ज़रूरी है. और जो हमारे लैंड व्हीकल्स होते हैं जैसे कार, बस जो हमारे होते हैं वो रेलवे लाइन पर नहीं चल सकते. सो लैंड ट्रांसपोर्ट हैव टू बी डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, दैट इज लैंड ट्रांसपोर्ट एंड रेलवेज. ओके, दैट इज रोडवेज एंड रेलवेज. नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस द रोडवेज. लैंड ट्रांसपोर्ट. Land transport or ground transport refers to the transport or movement of people or goods from one place to another on land, either by road or by rail. Land transport क्या होता है? मतलब ज़मीन के ऊपर, जब ज़मीन के ऊपर प्रोडक्ट्स को, गुड्स को या ह्यूमन बींग्स को एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसफ़र किया जाता है, that is called land transport, either by road or by train. Land transport is further subdivided into roadways and railways. हम इसे 2 parts में divide कर सकते हैं, roadways and railways. Now, roadways. Roadways are needed for the fast movement of vehicle. अब for example कि जो हमारी लैंड है वो हर जगह से तो कॉमन होती नहीं, कहीं पर वो एकदम प्लेन स्मूथ है, कहीं पर वो रफ है, अनडलेटेड है.
तो क्या होता है, जो रफ और अंडरलेटेड एरिया है, क्या वहां पर हम हमारे व्हीकल्स को आसानी से मूव कर सकते हैं? नो, इट्स नॉट पॉसिबल. सो फास्टेस्ट ट्रांसपोर्टेशन के लिए, फास्टेस्ट मूवमेंट के लिए हमें प्रॉपर रोडवेज की जरूरत होती है. सो फॉर दैट वी नीड द रोड्स. Roads are needed for fast movement of vehicles. Today, every country has a network of metalled and unmetalled. Metalled that means पक्का रोड, unmetalled that means कच्चा रोड. कच्चा रोड तो आमतौर पर होते ही हैं, जो विलेज एरियाज होते हैं वहां पर ज़्यादातर अनमेटल्ड यानी कि कच्चा रोड्स होते हैं, और जो अर्बनाइजेशन है, अर्बन सेंटर्स हैं, वहाँ सिटीज़ हैं, वहाँ पर ज़्यादातर मेटल्ड यानी कि पक्का रोड्स होते हैं, which facilitates the movement of traffic. See, जो मोस्टली अर्बन सिटीज होती हैं वहाँ पर हमारे पास पक्का रोड्स होते हैं, या तो वो सीमेंटेड होते हैं या तो फिर वो जो चारकोल होता है उससे बने होते हैं, बट दे आर, so these are the metalled roads. Okay, developed countries have a network of highways. You are very well aware about the highways. Highways वो रोडवेज होते हैं जो बहुत स्ट्रेट होते हैं, मीन्स कि सिटीज़ के बीच में कहीं से नहीं जाते, जो ऑलमोस्ट स्ट्रेट होते हैं, और वहाँ पर हैवी व्हीकल या फास्ट व्हीकल्स मूव कर सकते हैं इजीली. So developed countries have a network of highways. These are broad and straight roads and are known as freeways और expressways. ये जो हमारे हाईवेज होते हैं उन्हें हम फ्रीवेज भी कह सकते हैं और एक्सप्रेसवेज भी कह सकते हैं, बिकॉज दे आर मोस्टली स्ट्रेट एंड ब्रॉड. ये बहुत ज़्यादा ब्रॉड, चौड़े होते हैं और एकदम स्ट्रेट होते हैं, इनमें ज़्यादा घुमाव फिराव नहीं होता. जैसे हमारे सिटी के बीच में जो रोड्स होते हैं वो कभी यहाँ टर्न हुए कभी वहाँ टर्न हुए, लाइक दैट. जो हमारे हाईवेज होते हैं वो टर्न नहीं होते, ऑलमोस्ट ये स्ट्रेट ही होते हैं. दैट्स वाई दीज आर नॉन एज हाईवेज, फ्रीवेज और एक्सप्रेसवेज. ओके, सो जो हमारे ये हाईवेज या फ्रीवेज या एक्सप्रेसवेज होते हैं इन्हें 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है. वन पार्ट इज फॉर द मूविंग ऑफ व्हीकल ऑन वन साइड एंड सेकेंड पार्ट फॉर द मूविंग ऑफ व्हीकल ऑन द अदर साइड. मीन्स एक पार्ट जाने के लिए और दूसरा पार्ट आने के लिए. ओके, सी, each road is divided into 2 parts. One part is for the traffic moving in one direction and the other for traffic moving in the opposite direction. Some of these highways are wide enough to allow 4 to 6 lanes of traffic. कुछ हाईवेज ऐसे होते हैं जो बहुत ज़्यादा ब्रॉड होते हैं, जहाँ पे 4 से 6 लेन्स होती है, मतलब 4 वेज टू मूव इन वन डायरेक्शन, 4 वेज टू मूव इन अदर डायरेक्शन. तो वहाँ पर जो लेन्स होती है, जाने की जगह होती है, एक साथ 4 या 6 व्हीकल्स मूव कर सकते हैं एट द सेम टाइम. द हाईवेज हैव अ फिक्स्ड स्पीड लिमिट. जो हाईवेज की स्पीड लिमिट होती है वो फिक्स होती है, बिकॉज कि ये फ्रीवेज होते हैं और स्ट्रेट रोड होते हैं. इसका मतलब ये नहीं होता कि हम अपनी मर्जी से कितना भी हाई स्पीड में चला सकते हैं. सो वहाँ पर एक स्पीड लिमिट फिक्स होती है, दैट इज डन बाय द गवर्नमेंट. There are some countries that are connected to other countries by roadways. ऐसी बहुत सी कंट्रीज हैं जो रोड्स के जरिए आपस में कनेक्टेड हैं. सी, इफ वी टॉक अबाउट इंडिया, इंडिया इज कनेक्टेड विद पाकिस्तान, विद नेपाल, विद चाइना, विद भूटान, विद बांग्लादेश, विद म्यांमार. सो विद ऑल दीज आर नेबर कंट्रीज, इंडिया इज कनेक्टेड विद रोडवेज. तो इन सारी कंट्रीज से इंडिया रोडवेज से कनेक्टेड है. सो ऐसी बहुत सी कंट्रीज होती हैं जो आपस में रोडवेज से कनेक्टेड होती हैं. ऑलमोस्ट ऑल द कंट्रीज ऑफ यूरोप आर कनेक्टेड टू वन अनदर बाय अ नेटवर्क ऑफ रोड्स. जो यूरोप है मीन्स नेक्स्ट टू एशिया, अफ्रीका के ऊपर यूरोप कॉन्टिनेंट. I hope you all are very well aware about the continents. So यूरोप कॉन्टिनेंट जो है उसके लगभग सारी कंट्रीज आपस में रोडवेज से कनेक्टेड है. इंडिया इज ऑल्सो कनेक्टेड to her neighbors such as Pakistan, Nepal, Bhutan, Bangladesh
by a network of roads. That I told you. See, you have given one example. The Siliguri corridor in West Bengal connects India with neighboring countries of Nepal and Bangladesh. See, it's the name of a road, that is Siliguri corridor. It is the road in West Bengal and it connects the India with Nepal and Bangladesh. Both of these are our national neighbor countries. ये हमारी नेबर कंट्रीज हैं. तो ये जो एक स्ट्रेट हाईवे है सिलीगुड़ी कॉरिडोर, ये नेपाल और बांग्लादेश से इंडिया को कनेक्ट करता है. ओके, नाउ इंडिया बीइंग अ वास्ट कंट्री हैज मेड many roads and highways, but all its territories do not have equally developed roads and highways. Okay, before that, do you know the India? Okay, sorry, that is about railways, not the roadways. Okay, that we will discuss in railways. Okay, see, till now we studied about the benefits of roads. अभी तक हमने क्या पढ़ा था? roads के benefits. Now we will discuss the disadvantages of roadways in India. Means हमारे जो roadways की जो condition है that is not good in India, about that we will study. Okay, see, being a vast country, क्योंकि हमारी country बहुत बड़ी country है, हमारे जो roads हैं और जो highways हैं, इसकी जो territories मतलब जो boundaries होती है वो ज़्यादातर डेवलप्ड नहीं है. बहुत सारे तो ऐसे प्लेसेस हैं जहाँ पर इवन मेटल रोड्स भी नहीं हैं, अनमेटल्स कच्चा रोड्स हैं. वी स्टिल हैव मैनी कच्चा रोड्स एंड नीड टू बी मेटल्ड एंड सीमेंटेड. बहुत सारे रोड्स जो हैं वो अभी भी कच्चा रोड्स है, जो सिटीज़ को या विलेजेस को आपस में कनेक्ट करते हैं. दीज आर कच्चा रोड्स. सो दैट इज़ द कंडीशन ऑफ इंडिया. Road transport has two major drawbacks. Now these are the drawbacks of road transport. अभी तक हमने पढ़ा था कि उसके एडवांटेजेस क्या हैं. हम आसानी से कहीं भी मूव कर सकते हैं, गुड्स को मूव कर सकते हैं, सिटी कंट्रीज़ को ज्वाइन करता है. सो ये सब उसके इम्पोर्टेंस थे, बेनिफिट्स थे. आफ्टर दैट वी डिस्कस द बैरियर्स ऑफ दीज रोड्स इन इंडिया. नाउ वी विल डिस्कस द ड्रॉबैक्स ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट. कि जो रोड ट्रांसपोर्ट है उसके क्या डिसएडवांटेजेस है, ड्रॉबैक्स है. सी, फर्स्टली, sometimes it is not possible to construct roads on difficult terrains such as hilly areas. terrains मतलब मीन्स की जगह. बहुत सारी ऐसी जगह होती है जहाँ पर जो स्ट्रेट रोड है वो बनाना डिफ़िकल्ट होता है, जैसे कि हिली एरियाज़ में. मैंने आपको पहले भी बताया था कि माउंटेनियस एरिया है तो वहाँ पर हम रोड डेवलप नहीं कर सकते. सो दैट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट. सेकेंडली, दिस मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट कांट बी यूज्ड फॉर ट्रैवलिंग लॉन्ग डिस्टेंसेस. ये जो ट्रांसपोर्ट का मीन्स है वो लॉन्ग डिस्टेंस के लिए यूज़ नहीं किया जा सकता. फॉर एग्जाम्पल, वी आर इन इंडिया. ओके, नाउ वी नीड टू गो टू रशिया. हमें इंडिया से रशिया जाना है. सो दैट इज़ वेरी लेंथी रूट, बहुत लंबा रूट हो जाता है. इन दैट प्रोसेस इफ़ वी यूज़ द रोडवेज, अगर हम रोडवेज यूज़ करते हैं तो दैट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम. तो उसमें बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा. तो लॉन्ग डिस्टेंस. सो जब लॉन्ग डिस्टेंस की बात आती है तब हम रोडवेज को ज़्यादातर यूज़ नहीं कर सकते, बिकॉज दैट इज़ वेरी मच टाइम कंज्यूमिंग. वो हमारा टाइम और मनी कंज्यूमिंग हो जाता है. ओके, सो दीज टू आर द ड्रॉबैक्स, लिमिटेशंस ऑफ द रोड ट्रांसपोर्टेशन. नाउ नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट द railways. See, railways. On the right hand side of your textbook you have given the map of the railway network of India. इंडिया के जो रेलवे नेटवर्क है उसका आपको मैप दिया है. डू यू नो इंडिया हैज़ द लार्जेस्ट रेलवे नेटवर्क इन एशिया. एज यू नो वी लाइज इन एशिया कॉन्टिनेंट. तो पूरे एशिया में जो इंडिया का रेलवे नेटवर्क है ना, दैट इज द लार्जेस्ट रेलवे नेटवर्क. एंड इन द वर्ल्ड लार्जेस्ट रेलवे नेटवर्क इज ऑफ यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका.
का जो रेलवे नेटवर्क है वो पूरे वर्ल्ड में लार्जेस्ट है, बट इन एशिया इंडिया हैज द लार्जेस्ट नेटवर्क ऑफ रेलवेज. Now, let's start the railways. Railways are one of the most popular means of transport in India. Railways क्या है? ट्रांसपोर्टेशन का एक बहुत इंपॉर्टेंट मीन है, बिकॉज कि वो रोडवेज से वेरी फास्ट मूविंग होता है. जितना टाइम हमें रोडवेज से लगता है उससे कम टाइम हमें रेलवेज से लगता है, बिकॉज जो रेल्स होती है वो रेल लाइंस पर ही मूव करती हैं और रेलवे लाइंस बहुत फास्टली वर्क करती है. सो जो रेल की मूवमेंट होती है वो कार, बस या रोड व्हीकल की मूवमेंट से फास्ट होती है, क्योंकि वहाँ पर इतना ज़्यादा ट्रैफिक नहीं होता. जो रोडवेज होता है वहाँ पर तो हमें ट्रैफिक को भी फेस करना पड़ता है, बट जो रेलवेज होता है वहाँ पर ट्रैफिक नहीं होता है. ओके, दे वर इंट्रोड्यूस्ड बाय द ब्रिटिश. ये इसे ब्रिटिशर्स ने इंट्रोड्यूस किया था. ट्रेन्स आर यूज्ड फॉर कैरिंग बल्की गुड्स ओवर लॉन्ग डिस्टेंसेस. जैसे रॉ मटेरियल है, अब ऐसा तो नहीं है कि फैब्रिक इंडस्ट्रीज अगर एक जगह पर है तो उसका रॉ मटेरियल वहीं मिल जाएगा, अगर आयरन इंडस्ट्रीज है तो उसके बाजू में ही उसका रॉ मटेरियल मिल जाएगा. काफ़ी दूर से, इवन कभी कभी तो बहुत ज़्यादा डिस्टेंस से इन्हें मूव करना पड़ता है. उस केस में रोड ट्रांसपोर्ट की बजाय जो रेल ट्रांसपोर्ट होता है वो ज़्यादा इफेक्टिव होता है. ओके, दे आर ऑल्सो कन्वीनियंट फॉर ट्रैवलिंग शॉर्ट एंड लॉन्ग डिस्टेंसेस. जो ट्रेन्स होती है वो रोड व्हीकल्स के एवज में जो होती है ज़्यादा कन्वीनियंट होती है, ज़्यादा इजी होती है, बिकॉज दे मूव वेरी फास्टर देन द रोड व्हीकल्स. Sorry. Okay, goods trains carry raw materials to factories and industries. जो ट्रेन्स होती हैं, जो गुड्स ट्रेन्स होती है, जो स्पेशली फॉर गुड्स एंड मटेरियल्स, जो जिसे आप मालगाड़ी भी कह सकते हैं. गुड्स ट्रेन्स दैट मीन्स मालगाड़ी, जो स्पेशली फॉर गुड्स को वन प्लेस से दूसरे प्लेस तक कैरी करने के लिए यूज की जाती है. They carry the raw material to factories and industries. Then they also carry finished products to different parts of the country and to the ports of export. जो हमारा raw material है उसे पहले factories तक पहुंचाती है, फिर जो finished product है उसे country के बहुत सारे different areas में and even उन्हें export करने के लिए ports तक पहुंचाने का काम भी ट्रेन से किया जाता है. Railway plays an important role in the growth and development of industries in every part of the world, because की जो रेलवे लाइंस होती हैं दे वर्क इन हायर स्पीड और वो हैवी वेट सामान को भी आसानी से उठा सकती है. सो ऐसे तो फास्टेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट हमारा एरोप्लेन्स होता है, बट वो इतना ज़्यादा हैवी वेट एक साथ कैरी नहीं कर सकते जितना कि एक ट्रेन से कैरी किया जा सकता है. सो ये फास्टेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट भी है एंड दे कैन कैरी हैवी गुड्स एट द सेम टाइम. सो इंडस्ट्रियलाइजेशन या इंडस्ट्रीज की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए जो ट्रेन्स होती है या इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रेन है दैट वाज वेरी वेरी गुड. उसके लिए सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. सी, द यूएसए हैज़ द लार्जेस्ट नेटवर्क ऑफ रेलवे इन द वर्ल्ड. आई टोल्ड यू ना कि वर्ल्ड का जो सबसे लार्जेस्ट रेलवे नेटवर्क है वो यूएसए में है, बट द लार्जेस्ट नेटवर्क ऑफ रेलवे ऑफ एशिया इज इन इंडिया. इंडिया जो है, इंडिया हैज़ द लार्जेस्ट रेलवे नेटवर्क इन एशिया. See, in some countries, railway connects cities on the eastern coast to those on the western coast. Such long distance railway lines are called transcontinental railways. That is very important content. See, कुछ कंट्रीज ऐसी होती है जिसमें जो उनकी रेलवे लाइंस है उनके ईस्ट कोस्ट को वेस्ट कोस्ट से कनेक्ट करती है. सी फॉर एग्जाम्पल, इफ वी टॉक अबाउट इंडिया, the easternmost part of India is Arunachal Pradesh and the westernmost part of India is Gujarat. So जो railway lines if
sorry, countries. See, in some countries connects on the eastern coast to the western coast. So the railway line that connects these two parts is called transcontinental railways. तो उन्हें transcontinental railways कहा जाता है. Okay. Countries like USA, Canada and Australia have such large railway networks. तो ये जो ट्रांसकॉन्टिनेंटल रेलवेज है ये कौन कौन सी कंट्रीज में है? यूएसए है, कनाडा है, ऑस्ट्रेलिया है. ये कुछ कंट्रीज है जहां पर ऐसा ट्रांसकॉन्टिनेंटल रेलवेज की रेलवेज वर्क करता है. नाउ चाइना, फ्रांस एंड जापान, ये these countries have some of the fastest trains in the world. चाइना है, जापान है, फ्रांस है, ये कुछ ऐसी कंट्रीज है जहां पर वर्ल्ड की सबसे फास्टेस्ट, सबसे तेज चलने वाली ट्रेन्स हैं. दे रन एट अ स्पीड ऑफ ओवर, मतलब ज्यादा, 430 किलोमीटर पर आवर. एक घंटे में 430 किलोमीटर से भी ज्यादा इनकी स्पीड है. An underwater railway tunnel links France with UK, United Kingdom. Underwater railway tunnel, that means कि पानी के अंदर से भी एक टनल बनाकर रेलवे लाइन पास होती है जो कि फ्रांस और यूके को ज्वाइन करती है, कनेक्ट करती है. सो ओके, नाउ on the right hand side you have given one info pebble, that is Tangula railway station in Tibet is the highest railway station in the world. Yes, ये almost 3500 मीटर above है from the sea level. सी लेवल से लगभग 3500 मीटर अबव है टेंगुला रेलवे स्टेशन जो कि तिब्बत में है. ये पूरे वर्ल्ड का हाईएस्ट, मतलब सबसे ज्यादा ऊंचा रेलवे स्टेशन है. ओके, you have given one more info pebble on the next page, that is the train route that connects St. Petersburg and Vladivostok is called Trans-Siberian Railway that is in Russia. रशिया के नॉर्थन पार्ट में जो व्लादिवोस्टॉक है वहाँ, सॉरी व्लादिवोस्टॉक है, वहाँ से रशिया के साउथ वेस्टर्न पार्ट तक जो सेंट पीटर्सबर्ग है वहाँ से लेके एक रेलवे लाइन है दैट इज नॉन एज ट्रांस साइबेरियन रेलवे, जिसे कि हम ट्रांस साइबेरियन रेलवे कहते हैं. इट इज ए 10,000 किलोमीटर जर्नी एंड इज द लॉन्गेस्ट रेलवे लाइन इन द वर्ल्ड. ये पूरी सेंट पीटर्सबर्ग से लेके व्लादिवोस्टॉक तक की जो जर्नी है वो 10,000 किलोमीटर्स की है और ये पूरे वर्ल्ड की सबसे लंबी, लॉन्गेस्ट रेलवे लाइन है, सबसे लंबी, बिकॉज इट कवर्स अ टोटल डिस्टेंस ऑफ 10,000 किलोमीटर. So that is very good info, and you know that all info pebbles are very important. Okay, now, and underground railway system is called metro rail. You all are very well aware about the metro rail. metro rail क्या होती है? अंडरग्राउंड रेलवे सिस्टम होता है जिसमें जो रेल्स होती हैं वो ऑलमोस्ट अंडरग्राउंड, जमीन के नीचे चलती हैं. लंदन, न्यूयॉर्क, टोक्यो, दिल्ली, कोलकाता, etc. These all are the places they served by the metro system, जहाँ पे मेट्रो सिस्टम्स को यूज किया जाता है. नाउ टुडे इंडिया हैज द लार्जेस्ट रेलवे नेटवर्क इन एशिया एंड द फोर्थ लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड. सी, इंडिया का जो रेलवे नेटवर्क है दैट इज the largest one in Asia, and India has the place of fourth largest railway station in the world. Shatabdi, Rajdhani are some of the super fast trains in India. You are very well aware about the fastest trains of India. जैसे शताब्दी है, राजधानी है, ये जो हमारी कुछ फास्टेस्ट ट्रेन्स हैं.
the network of metro rail system is also developing at a fast pace. अभी तक जो हमारा मेट्रो ट्रेन है वो दिल्ली और कोलकाता में ही ज़्यादातर डेवलप है, बट धीरे धीरे हमारे जो जितने भी सिटीज़ हैं, जो इम्पोर्टेंट सिटीज़ हैं, वहाँ पर भी ये सिस्टम को एस्टेब्लिश किया जा रहा है। तो धीरे धीरे इंडिया में जो मेट्रो रेल सिस्टम है उसे और ज़्यादा डेवलप किया जा रहा है. ओके, नाउ till now we have discussed about the transport, the means of transport. In that we have discussed land transport, that is roadways and railways. Now next is the water transport and air transport, that we will discuss in our second part. Okay.